Hello students, welcome back. So in today's topic we're gonna study about applications of concave and convex mirror. In previous topics we have already discussed the image formation using concave and convex mirror. So we are just about to finish this topic of mirrors. So just let's recall some of the properties of concave mirror. So in applications, here I should write applications. Okay. So applications of one is concave mirror. Well, we know that concave mirror is called a converging mirror. It's a converging mirror. If you have not seen the previous topics, I suggest you to go to the YouTube channel and you will get the previous topics. Okay, so first watch that previous topics and then you come back to this today's lecture. So this is a concave mirror, this is called a converging mirror. And why it is called converging? Because it converges all the light. So if the light is coming from infinite, so if somebody has joined only today, let's see, this is pole, P stands for pole, and pole is nothing but this is the geometrical center of the mirror. Pole is nothing but this is the geometrical center of the mirror. All the distances are measured from the pole. We have already discussed sign and convention. All the distances are measured from the pole. Okay, the distances which are measured along the line of the incoming ray are taken as positive, and the distances which are measured against the line of incoming ray are taken as negative. Okay, so this is, you can say, just a principal axis. Okay, so this is rays coming from infinite, and we all know, as we have studied in previous topics, these will converge, these rays will converge at principal focus. This capital F stands for principal focus. Alright, so students, that's why it is called converging mirror. Converging, concave mirror is actually known as converging mirror. Concave mirror is actually known as converging mirror. Okay, as this is converged. So just because it converges, what will be applications of concave mirror? Just because it is converges, yes, concave mirror is actually makeup mirror. Just for board classes, we are studying it's a makeup mirror. You can say shaving mirror. Shaving mirror. Okay, also you can say used in ENT hospital, or you can say ENT doctors use this concave mirror just because it converges the light. Just because it converges the light. It can also be used in solar cookers. Solar cookers. So I don't know what is the spelling of the cooker, so don't mind about that. Solar cooker अरे जिसमें पकाते हैं हम लोग, पढ़ाते टाइम नहीं पकाते, खाना पकाते हैं. होता क्या है? So guys, makeup mirror, as we all know that converging mirror जो है, concave mirror जो है, in its final image formation, we studied about that it makes virtual and erect and highly magnified image. If object is situated between the focus and the pole, अगर object जो है वो focus और pole के बीच में रख दिया जाए, then its image becomes here, virtual, erect and highly magnified image. Concave mirror can form virtual, erect and highly magnified image. Because of this property, it uses in makeup and shaving. अरे हम लोग जिसका जहाँ शेविंग कर लेते हैं, दैट इज़ अ प्लेन मिरर. हम तो सामने प्लेन मिरर के शेविंग करते हैं, या आप जो मेकअप कर लेते हैं, इट्स जस्ट अ प्लेन मिरर. कॉन्केव मिरर के सामने जाओ तो बिल्कुल उसके पास खड़े हो जाओ, उसके फोकस और पोल के बीच में, एंड यू विल गेट योर एनलार्ज्ड इमेज, है ना. इतना सा थोबड़ा आपका इतना बड़ा नजर आएगा एकदम. तो मेकअप करना भी आसान होगा और शेविंग करना. जो फिल्म स्टार्स होते हैं, उनकी एज काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी उन लोग का मेकअप इतना बढ़िया होता है, दे लुक वेरी यंग. जो कॉन्केव मिरर अगर यूज़ करते हैं तो फेस एग्जैक्टली नज़र आता है, बहुत बड़ा. तो कहाँ पे क्या दिक्कत है उसको ईजिली फिल करना, मतलब दे नो हाउ टू डू इट. So that is the use of concave mirror, because concave mirror can form virtual, erect and magnified image. Convex mirror can form virtual, erect but diminish image. Convex mirror forms virtual, erect image. Convex mirror virtual, erect बनाता है, but वो छोटी इमेज बनाता है. Concave mirror can form virtual, erect and magnified image, बड़ी इमेज बनाता है. Okay, that's why हम उसका मेकअप मिरर में यूज़ करते हैं.
शेविंग मिरर में भी वही अपना काम है। यूज्ड इन ईएनटी डॉक्टर, अच्छा ईएनटी डॉक्टर देखो इस सेंटेंस को थोड़ा और अच्छे से बना लेना। यूज्ड इन हॉस्पिटल्स व्हेन द ईएनटी डॉक्टर ही चेक हिज पेशेंट्स, है ना, ये तो जो उनका थेरेपी होता है एंड द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन ही गिव्स, सो इन दैट टाइम ही यूजेस कनकेव मिरर। ओबियस सी बात है यार, अगर मुझे नाक कान देखना है तो वो कनकेव मिरर यूज़ करेगा, बिकॉज इट कन्वर्जेस द लाइट, लाइट को कन्वर्ज करता है, हर तरह की लाइट को कन्वर्ज करेगा, एक जगह पे लाएगा, तो इससे हमें स्पेशली वो पॉइंट नज़र आएगा। ओके, सपोज इफ आई एम अ डॉक्टर, ENT डॉक्टर, एंड आई हैव टू सी समथिंग इन ईयर ऑफ सम पेशेंट, देन आई विल ट्राई टू कन्वर्ज लाइट एट दैट पॉइंट so that I am able to see that point, so that I am able to see the if any defect is there. Okay, so he uses converging mirror, उसको converge करना है। सोलर कुकर, अरे यार वी हैव लेंस पढ़ा है, कभी देखा है ऐसा, ऐसे यूँ करते हैं और लाइट एक जगह कन्वर्ज होती है। जब when the light converges at a point, then that particular point gets a lot of energy and then it can be easily you can say burnt, है ना, उसमें मतलब कि आग जलाना आसान होता है। तो सोलर कुकर क्या करता है, करके मिरर लगाओ, इतनी एनर्जी उसमें दे देगा कि वो चीज़ें अपने आप उबलना शुरू हो जाएंगी, सो इट विल बी वेरी इजी टू कुक फूड। ओके, तो ये तो बात हुई हमारी कॉनकेव मिरर की। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इसमें कन्वेक्स मिरर। वेल, वी हैव स्टडीड अबाउट कन्वेक्स मिरर एंड इसकी दो प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं। रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट तो प्रिंसिपल फोकस में कन्वर्ज होंगी, एक्सेप्ट इनफाइनाइट कहीं भी होगी तो फोकस और पोल के बीच में। तो कन्वेक्स मिरर also known as diverging mirror, कन्वेक्स मिरर also known as diverging mirror। क्या क्या मतलब मायने होते हैं? आई एम श्योर यू कैन सी द बोर्ड स्टूडेंट्स, जी हाँ आपको नज़र आ रहा है। सो कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। व्हाट डज इट मीन? डाइवर्ज करता है, इट डाइवर्जेस, अरे डाइवर्ज करता है भाई, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर एंड ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। द डिस्टेंसेज विच आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इनकमिंग आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेज विच आर मेजर्ड अगेंस्ट द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट यूँ आ रही है और आप डिस्टेंस भी यूँ मेज़र कर रहे हो, सो इट विल बी पॉजिटिव, बट लाइट ऐसे आ रही है और आप ऐसे मेजरमेंट कर रहे हो, सो डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। साइन एंड कन्वेंशन, ऑल द हाइट मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर मैं बॉडी को यहाँ रख दूँ तो उसकी हाइट पॉजिटिव है, बट यहाँ रख दूंगा तो नेगेटिव है। सो दीज आर द बेसिक साइन एंड कन्वेंशंस वी यूज़। ओके, सो इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। बिफोर टीचिंग डाइवर्जिंग मिरर, अलाउ मी टू हैव फ्यू सेकेंड्स इन फ्रंट ऑफ AC, क्योंकि ये डाइवर्ज नहीं होता है, तो डाइवर्ज नहीं होने की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर आता है इस पर। सो यहाँ से लाइट आई बच्चों, सो ये लाइट यहाँ आई, ये लाइट यहाँ पे आई और ये यहाँ से डाइवर्ज हो गई, ये ऐसे चली गई, ये लाइट ऐसे। सो देखो ये डाइवर्जेंस हुआ कि नहीं हुआ, लाइट फैल गई। गाइज ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज लाइट हैज़ टू फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट विल हैव टू फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज़ द पॉइंट। सो इफ़ आई हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल, तो नॉर्मल तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, तो भाई लाइट जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने बोले तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करूँगा, जितने एंगल पे लाइट आएगी उतने एंगल पे लाइट जाएगी। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। सो डाइवर्जिंग मिरर का क्या एप्लीकेशन है, मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ, है ना, देन मैं आपको डाइवर्जिंग मिरर का एप्लीकेशन बताता हूँ। तो जैसे मेकअप में ये यूज़ होता है, तो ये ध्यान रखना, ये साइड व्यू मिरर होता है, साइड व्यू मिरर। इसको हम लोग ड्राइवर्स मिरर भी बोलते हैं, जो आपके गाड़ियों के साइड में होता है। आपका 4 व्हीलर है, आपका 2 व्हीलर है, जो साइड वाला मिरर होता है ना, जो आपको पीछे का ट्रैफिक दिखाता है, द मिरर विच यू हैव इन योर व्हीकल्स, यू नो, साइड मिरर्स, एंड यू कैन सी द ट्रैफिक बिहाइंड यू, दैट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर, दैट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि फील्ड व्यू बड़ा होता है, वो पूरा आपको दिखा देगा कितना क्या क्या है उसके पीछे। कन्वर्जिंग कनकेव लगा दोगे तो सिर्फ जस्ट उस ट्रक की हेडलाइट का छोटा सा हिस्सा नजर आएगा जो जस्ट पीछे है। सो इट इज़ अ साइड व्यू मिरर, ऑल्सो नोन एज ड्राइवर्स मिरर। अच्छा, ये आपका स्ट्रीट लैंप में भी यूज़ होता है, स्ट्रीट लैंप,
ठीक है, मतलब बड़े बड़े देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन इनके होते हैं, बट हम उन एप्लीकेशन में सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको साफ करता हूँ। स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस इज द बल्ब, बल्ब से लाइट निकली एंड इट इज़ अ विच मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये कॉन्वेक्स मिरर है, बल्ब से लाइट निकली, सो यू कैन सी द रिफ्लेक्शन, द लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द मिरर एंड इट डाइवर्जेस। अगर सपोज करो, अगर मैं इसकी जगह ये कॉन्केव मिरर ले लूँ, सो दिस इज़ कॉन्केव मिरर, यहाँ पे मैं वही वाला बल्ब जो है वो ऐसे ग्लो करूँ, तो कॉन्केव मिरर पे लाइट यूँ गई, तो अब आप सोचो कि दिस इज़, अब इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, है ना। ऑलवेज यू नो नेवर गेट कन्फ्यूज अबाउट द इमेज फॉर्मेशन, जस्ट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इफ द लाइट स्ट्राइक्स हियर इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। लाइट जहाँ से, क्योंकि इस पॉइंट पर इफ़ यू ड्रॉ द नॉर्मल, देन नॉर्मल विल बी लाइक दिस, तो भैया जीरो एंगल पे आएगी लाइट, जीरो एंगल पे वापस जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो लाइट यहाँ स्ट्राइक की वो भी वापस सेम पाथ पे आ जाएगी। ठीक है, जो आएगी वही लाइट। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट पर आएगी लाइट, अब इस पॉइंट पे नॉर्मल जो है वो कैसा है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज कर रहा है। इन पॉइंट्स पे देखोगे तो नॉर्मल आपको कैसा कैसा मिलेगा, भाई लाइट यहाँ आई तो यू नॉर्मल मिलेगा, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये समझो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर बल्ब की प्रकाश को फैलाना है ना, इफ़ यू वांट टू स्प्रेड द लाइट ऑफ बल्ब यू मस्ट यूज़ कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इट डाइवर्जेस द लाइट। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि एक ऐसा बल्ब हो जिसका प्रकाश फैले नहीं, एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाए तो काहे का बल्ब। सो बिकॉज वी वांट द लाइट टू गेट स्प्रेडेड विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द बल्ब, सो वी यूज़ कन्वेक्स मिरर, दैट्स वाई। अब समझ में, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है मिरर का यूजेस, वैलिड फॉर ऑल मिरर्स। ऑल मिरर्स मीन्स चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, मिरर फॉर्मूला सब पे एक जैसा चलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। This is the one and only mirror formula. Okay, so F stands for focal length, V stands for image formation, V stands for position of image, U stands for position of object. U क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ से है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ से मेज़र हो रही है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेज़र होती है पोल से। U is the position of object and it is measured from the pole. All the distances are measured from the pole. तो अगर ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हो, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का सीधा डिस्टेंस that is called U. और अगर इमेज बन रही है तो पोल से इमेज का डिस्टेंस will be the position of image. F is the focal length of the mirror. ठीक है, दिमाग में बैठा लेना इसको। So students, now वी नो दैट अगर मैं आपको ये कॉन्केव मिरर बोलूँ, कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ जो है एफ जो है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव रीज़न बताओ क्यों होता है? ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि कॉन्केव मिरर में दिस साइड इज पॉलिश्ड। इफ दिस साइड इज पॉलिश्ड, और यू कैन से दिस साइड इज सिल्वर्ड, और यू कैन से दिस साइड इज मेड ओपेक, मतलब ये साइड अब किसी काम की नहीं है। You can't say sir लाइट यहाँ पे आ नहीं रही है, yes light is coming but I am not interested in that light. Why? Because this is opaque. Light is not, neither it will be reflected nor it will be transmitted or refracted. It will be absorbed, or you can say God knows where it goes. It doesn't matter. तो इधर कुछ भी रख दोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कॉन्केव मिरर में मैं कहूँगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ से। लाइट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वॉट एवर इज द ऑब्जेक्ट। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ ऑप्टिक्स में, सो इट बिहेव्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो ऑब्जेक्ट से लाइट यूँ आई, ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ए एंड बी, है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो यूँ आ गई। अकॉर्डिंग टू दिस इज द पोल, दिस इज अकॉर्डिंग टू साइन एंड कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो पोल से ऑब्जेक्ट को अगर मैं जाऊंगा तो मैं ऐसे जाऊंगा यूं, ठीक है।
अच्छा, ये मिरर मैंने जिस बड़े स्फेयर से हटाया है गाइज, इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस लेक्चर्स, आई सजेस्ट यू टू गो बैक एंड फर्स्ट वॉच प्रीवियस लेक्चर्स. Spherical mirrors always are taken from the sphere, glass spheres, है ना. तो ये जो बड़े बड़ा स्फेयर है जहाँ से मैंने इसको निकाला है, द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर विल बी कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. और यहाँ पे कहीं पे फोकस आ जाएगा जहाँ से लाइट जो है वो यूँ पार हो रही है, ऐसे. नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड लाइट इज कमिंग इन दिस. तो ये लाइट के इनकमिंग का डायरेक्शन है, लाइट यूँ आ रही है, बट ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. तो भैया सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगी? पोल से. तो पोल से ही एफ जाऊंगा तो ऐसे डिस्टेंस लेना पड़ेगा, विच इज स्मॉल एफ, आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स. पोल से ही सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. इसको हम कहते हैं आर. और पोल से ही ऑब्जेक्ट की तरफ भी जाना पड़ेगा और इसको बोलते हैं यू, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. So can you see in concave mirror, pole, all the distance, obviously all the distances are measured from the pole. So in concave mirror, focal length is negative, center of curvature is negative, means radius of curvature, and distance of object is negative, position of object is negative. concave mirror में सब नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि इधर को पॉलिश कर दिया और हर चीज़ इसके इस तरफ ही होती है. जो इसकी ये जो मुड़ी हुई साइड है ना, सब कुछ इसी तरफ होता है कॉन्केव मिरर में, किसी भी मिरर में ले लो. तो यहाँ P टू F भी यूँ जाना पड़ेगा, P टू C भी ऐसे आना पड़ेगा, P टू बॉडी भी ऐसे आना पड़ेगा. एंड लॉज सेज एनीथिंग यू मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग रे इज नेगेटिव. एंड गाइज रे तो यूँ आ रही है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इस साइड में, तो रेज ऐसे आएंगी. आप सब कुछ इधर मेजर करोगे तो इसमें F भी नेगेटिव हो जाएगा, R भी नेगेटिव हो जाएगा, U भी नेगेटिव हो जाएगा until it is virtual. और V, आप बोलोगे सर आपने V के बारे में नहीं बताया. गाइज इन कॉन्केव मिरर इन मोस्ट ऑफ द केसेस V image forms in front of mirror, so position of object will be negative. But yeah, there is one case when the image is formed this side, तो वहाँ पे V पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, तो ये मैं मिरर फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ. ऑलवेज अप्लाई साइन एंड कन्वेंशन. ये जो है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट, ऑलवेज अप्लाई साइन एंड कन्वेंशन बिफोर सॉल्विंग न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमेशा साइन एंड कन्वेंशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला सभी पे वैलिड है, सब पे वैलिड है. ठीक है. अच्छा, जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है उस पर कभी साइन एंड कन्वेंशन नहीं लगता. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट U, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट V, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट F, नेवर अप्लाई साइन एंड कन्वेंशन. जिसको भी कैलकुलेट करना है इट ऑलवेज कम्स विद इट्स साइन. दिमाग में बैठा लेना. दिस इज द मिरर फॉर्मूला, वैलिड फॉर ऑल द मिरर्स. थर्ड, ऑलवेज अप्लाई साइन एंड कन्वेंशन बिफोर यू सॉल्व द क्वेश्चन. फोर्थ, जो कैलकुलेट करना है उस पर साइन एंड कन्वेंशन नहीं लगता. मीन्स वट एवर यू हैव टू कैलकुलेट इन द क्वेश्चन, नेवर अप्लाई साइन ऑन कन्वेंशन ऑन दैट. ठीक है. अच्छा, कॉन्केव मिरर में ये सब नेगेटिव होता है. कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में क्या नेगेटिव होता है. दिस इज अ कन्वेक्स मिरर. दिस साइड इज पॉलिश्ड. इफ दिस साइड इज पॉलिश्ड मीन्स देर इज नथिंग लाइट कैन कम दिस साइड. लाइट ऐसे आ भी रही है तो मेरे को मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. क्यों? बिकॉज दिस साइड इज पॉलिश्ड, सो लाइट विल बी ओनली कमिंग फ्रॉम दिस साइड. मेरे को उसी से मतलब है. बट द स्फेयर हुज मिरर फॉर्म्स अ पार्ट विल बी लाइक दिस. इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यही होगा. और प्रिंसिपल फोकस भी इसका यही होगा. सब चीज़ें इसी साइड में मिलेंगी, उधर तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको. बट ऑब्जेक्ट अब आपको इस साइड में मिलेगा, क्योंकि लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से आती है. यहाँ ऑब्जेक्ट मैं रखूँगा नहीं बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्जेक्ट यही मिलेगा. ऑब्जेक्ट से लाइट आपको मिलेगी ऐसे, दिस वे. अब यहाँ पे नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री बनाओगे तो ऐसे बनेगा, तो लाइट विल बी गोइंग लाइक दिस. जो भी एंगल ये है वही एंगल ये है. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर लाइट यहाँ से भी ऐसे चली गई तो ये यहाँ पे मिलती हुई अपने को लगेगी एंड दिस विल बी फोकस इमेजनरी.
Now tell me one thing, where is the pole? Pole is the geometrical center. All the distances are measured from the pole. तो pole से F की distance ये है. So this is small f direction. Pole to center of curvature distance भी pole to C है, तो ये है. तो this is the direction of measurement. And light is coming from this to this side. अरे लाइट ऑब्जेक्ट से आती है, तो लाइट के आने की डायरेक्शन भी यही है. सो देखो सब एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है. सो फॉर कॉन्वेक्स मिरर एफ पॉजिटिव, आर पॉजिटिव एंड यू पॉजिटिव और नेगेटिव. सोच के बताना, यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. व्हाट इज यू? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. सभी पोजीशन कहाँ से मेजर होती हैं? पोल से. तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो ऐसे मेजर होगी ना, और लाइट तो ऐसे आ रही है, तो यू विल बी नेगेटिव. यू विल बी नेगेटिव. क्लियर हो पा रहा है? तो ये बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की. और इमेज जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इमेज यही, मतलब इमेज तो यही बनेगी. इमेजनरी ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इमेज आपके पास या तो यहाँ बनेगी इस साइड में वर्चुअल, या यहाँ बनेगी. तो इमेज जो है वो भी आपकी ऐसे बनेगी वी, तो आपका वी भी जो है वो पॉजिटिव आएगा. These all are happening when the object is not imaginary. If object is imaginary, it may be anywhere. ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है. So these are the important points. I'm sure you can understand. So if you want to write it in language, you can write it in language like, in case this is the mirror formula, where F is the focal length of the mirror, V is the position of image, which is measured from the pole, pole to image distance. U is the position of object, means pole to object distance. Okay, whenever you use this formula in numericals, always apply sign and convention. ठीक है, साइन एंड कन्वेंशन मतलब क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव. सेकंड, जो भी कैलकुलेट करना है उस पर साइन एंड कन्वेंशन नहीं लगेगा. ठीक है. कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, साइन एंड कन्वेंशन. आर नेगेटिव, आर विच इज एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, यू नेगेटिव, एंड वी डिपेंड्स भाई इमेज कहाँ बन रही है उस पर डिपेंड करता है. और कॉन्वेक्स मिरर में भी यू नेगेटिव, सो यू इज ऑलवेज नेगेटिव यू कैन से. वी पॉजिटिव, क्योंकि वी तो हमेशा इस साइड में ही बनता है. एफ पॉजिटिव, आर पॉजिटिव. तो कॉन्वेक्स मिरर में यू को छोड़ के सब पॉजिटिव. ठीक है, तो ऐसे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो गाइज द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर की फोकल लेंथ बताओ. What will be focal length of plane mirror? बताओ. Focal length of plane mirror. In case of plane mirror, we know that u is equal to v. आप बोलेंगे सर वाई u is equal to v? अरे यार, प्लेन मिरर में मिरर से जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर पे इमेज भी होता है. ओके, सो डिस्टेंस इज सेम. सो जो भी u होगा वही v होगा. सो प्लेन मिरर में u और v इक्वल होता है. ठीक है, ये पता होना चाहिए था आपको. सो प्लेन मिरर में, इन केस ऑफ प्लेन मिरर वी नो दैट, अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको. ठीक है, समटाइम्स बोलते हैं लोग कि सर राइटिंग आप ठीक से नहीं लिखते हो. अब पढ़ाते पढ़ाते इंसान भावुक हो जाता है थोड़ा. तो प्लेन मिरर में u इक्वल टू वी. सो इन केस ऑफ प्लेन मिरर वी नो दैट u इज इक्वल टू वी. ठीक है. सो एक चीज़ दिमाग में रखना कि भाई अच्छा हाइट भी बराबर है. लिख देता हूँ, मैटर तो नहीं करता, बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर है. मतलब जितना हाइट इसका है ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट इमेज का भी है. ठीक है. अच्छा, नाउ सिंस u इक्वल टू वी, सो आई मे राइट बोथ ऑफ v और बोथ ऑफ u, कुछ भी लिख दो. तो मैंने लिखा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v. सो ये बराबर हो जाएगा. नाउ अप्लाई साइन एंड कन्वेंशन. साइन एंड कन्वेंशन. सो आई हैव टू कैलकुलेट फोकल लेंथ. आई हैव टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर. तो इस पर तो कोई साइन एंड कन्वेंशन लगेगा नहीं.
बिकॉज दिस वी आई नीड टू कैलकुलेट, तो इस पर साइन कन्वेंशन नहीं लगाते, बट इस पर लगेगा। देखो, दिस इज द ऑब्जेक्ट, सो लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर, दिस, एंड डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द मिरर टू ऑब्जेक्ट। तो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू मेजर होगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा। समझो बात को। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर तो ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट जो आ रही है, वो ऐसे आ रही है टुवर्ड द मिरर, बट साइन एंड कन्वेंशन कहता है कि डिस्टेंस पोल से सबका मेजर करेंगे, तो पोल टू ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड लाइक दिस, एंड पोल टू इमेज डिस्टेंस विल बी मेजर्ड लाइक दिस। तो अब ये दोनों तो बचा ले जाएंगे, वाई? बिकॉज लाइट रे और इमेज फॉर्मेशन सेम डायरेक्शन है, तो v तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये लाइट रे आ रही है और ये हम लोग मेज़र कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हमको किसी एक को नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना। तो u तो सही है, बट u नेगेटिव u बराबर v है, तो v की जगह माइनस यू रखना पड़ेगा। तो v की जगह माइनस यू रख दो, चाहे u की जगह माइनस वी रख दो, बात एक ही है यार। नेगेटिव को इस साइड में ले जाओ, u इक्वल टू माइनस वी, ये हो गया 0। सो 1/f इज इक्वल टू 0, विच मीन्स f इज इक्वल टू इन्फानाइट। प्लेन मिरर में फोकल्स होगा ही नहीं, प्लेन मिरर में फोकल लेंथ होगा ही नहीं। लाइट अगर ऐसे आई तो ऐसे चली जाएगी, ऐसे लाइट आती है तो ऐसे चली जाती है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेज का फोकस नहीं हो रहा है कहीं पे भी, सो फोकल लेंथ उसका इनफाइनाइट है। सीधी रेज आएंगी, एंगल या सीधी रेज आ रही है, मेकिंग एंगल 0 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल, तो इट विल बी रिट्रेसिंग इट्स पाथ। सो गाइज, व्हाट हैपन्स व्हेन वी पुट अ प्लेन मिरर इन अ लिक्विड? बताओ, इफ वी पुट अ प्लेन मिरर इन अ सॉल्यूशन, कोई लिक्विड में इसको डालते हो आप, सो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स फोकल लेंथ? बताओ गाइज, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इट्स फोकल लेंथ। यू नो व्हाई? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर only depends on image and object. Focal length of plane mirror only depends on image and object. Clear? Focal length of plane mirror only depends on image distance and object distance. It does not depend on the medium, so it means there will be no effect. So if a plane mirror is dipped in a liquid or in any kind of solution, if इसको धरती आकाश पाताल कहीं भी ले जाओ, इसकी फोकल लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। So this was all about in today's lecture, guys. In the next lecture we will be studying about magnification and we will be doing some very good numericals on mirror formulas. So अगला lecture मिस मत कीजिएगा। Thank you very much.